सोशलिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, ठीक है। सोशलिज्म के लिए प्रायोरिटी क्या है? इक्वालिटी, ठीक है, नॉट फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज, सोशलिज्म क्या करेगा, आपको समाज के बारे में पहले सोचने बोलेगा, ठीक है, राइट। सोशलिज्म विल टेल यू टू फोकस ऑन सोसाइटी, focus on society. When you focus on society, what will happen in that case? You will What will lose be your your prime freedom, goal? sir. Huh? The prime Lose your objective of freedom, yours sir. is to compromise your freedom. Yes, sir. Yes, actually correct. When you will think about the society, whether you will able to think about your individual, about you, or you will think for the society. The moment you think for the society, you lose your freedom. What will happen? You will lose your freedom. And what will be there with you is only duty. क्या बचेगा तुम्हारे पास में? दायित्व, ठीक है। तुम्हारे पास बचेगा क्या? सिर्फ ड्यूटी, ड्यूटी बचेगी। राइट तो बचेगा नहीं ना, क्योंकि तुम्हें हर बार जब भी सोचना है, तुम्हें सोचना ही पहले समाज के लिए। तो फादर अगर अपने बेटे के बारे में, बच्चों के बारे में सोचेगा, या मदर अपने बच्चों के बारे में सोचेगी, तो आपने नया नोशन सुना होगा ना, आजकल वेस्टर्न सोसाइटी बहुत ज्यादा चलता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन, ठीक है, मदर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। मी टाइम, यू हैव हर्ड दिस मी टाइम? यस सर। याद आया मी टाइम क्या है? ये मी टाइम किस टाइम की बात कर रही हूँ? मी टाइम का मतलब ये है कि आई शुड बी कंसीडर्ड माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर कंसिडरिंग माई चिल्ड्रन. So they are bringing the concept of freedom and individuality in the concept of obligation of parenthood. Parenthood का obligation क्या कहता है, ठीक है, कि आप बच्चों के बारे में पहले सोचेंगे, बाद में अपने बारे में सोचेंगे. Is it right? ये है. So there is a notion of me time that is cropping up in the West, and sometime it is getting into the East also. Okay, it's cropping or it's creeping in the East also. Okay, so duty will be emphasized the same way in the society, in the socialism. If there is a focus on society के बारे में, the focus is entirely on society, primary is given on the society. Society should be equal. देखो society equal है नहीं है वो एक अलग चीज है, डिबेट ही अलग है. Socialism will ask you to focus on the society. The moment you focus on the society, you lose freedom, and only thing you're left with is duty. And the tenet on which the democracy is functioning is not equality. Democracy क्या कहता है? People में इंडिविजुअल पे फोकस है, और अगर इंडिविजुअल पे कोई चीज फोकस है, तो तुमसे अगर मैं कहूंगा कि फोकस ऑन इंडिविजुअल, फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट विल यू फोकस ऑन? Whether you will focus on liberty, or you will focus on freedom, or you will focus or rights, or you will focus on the duty. किस पे फोकस करोगे? राइट्स पे सर. Obviously तुमने किया भी है ऐसा. In fact, you have done that. I'll tell you how. When we have asked you, we have introduced democracy in the history, in the modern history, and we asked you to make a constitution. हमने क्या बोला कि आप काम करो, constitution बनाओ. तो आपने क्या किया? As an individual, as a people, as an individual, what you have done? You have protected your fundamental rights. You have protected your fundamental rights. Is it visible? I guess not. सब दिख रहा है सर. ठीक है? What you have done? You have focused on your individual fundamental rights, and you made this fundamental right as a, you can say, the basic tenet of the functioning of the country. Basic tenet बनाया आपने इसको. बनाया कि नहीं बनाया?
अमेरिका में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो आपने इसको बेसिक टेनेट बनाया कि नहीं बनाया, फंडामेंटल राइट, और आपने ये कहा भी कि गवर्नमेंट फंक्शन कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट फंक्शन कर सकता है, जैसा चाहे वैसा फंक्शन कर सकता है, बट irrespective of violation of the fundamental rights, that what we have got in the, this is what we have got basically in the written constitution. Unwritten constitution में तो fundamental right होता ही नहीं है. UK there is no fundamental right, concept of fundamental right. सर इवन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोतीलाल नेहरू के 14 पॉइंट थे उसमें भी फंडामेंटल राइट थे जो उनको प्रायोरिटी दी गई थी सर. ऑब्वियसली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है. इसी के लिए अब इसको बचाने के लिए आपने एक नया टर्म यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. दैट इज द constitutionalism, the constitution that is created by the individuals in a democratic setup. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल ने बनाया, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल ने बनाया वो सुप्रीम है. और उस सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का. तो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रिसीड करेगा किसे, या राइट्स प्रिसीड करेगा, फ्रीडम प्रिसीड करेगा किसे, ड्यूटी को. इसी के लिए ये दोनों ही अपोजिट में है, ठीक है. डेमोक्रेसी और सोशलिज्म इज इन अपोजिट, बट इन रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल्स. तो आपने एक टर्म सुना होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का भी टर्म आपने सुना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है. सोशलिज्म में आपको ड्यूटी मिलेगी, सोशलिज्म में आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी. डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलेगा, राइट्स. दैट इज द रीजन इन चाइना वी डू नॉट हैव डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में. गेटिंग में, ठीक है. अभिषेक. जी सर, अभी समझ में आया सर. समझ में आ गया? जी सर. Okay. Chalo. So I'll end the class in here and we can begin from Monday. Enjoy your day. Take care.